Good morning everyone. So our today's topic is the concentration terms, which is again a very important topic from the physical chemistry, ਜਿਹੜਾ कि physical chemistry ਦਾ बहुत important topic है बेटा, ठीक है। ਤੇ ਇਸ topic ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ solution ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ solution ਦੀ concentration ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਲਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ about the true solution, ठीक है। ਤਾਂ solution ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ it is the homogeneous mixture of two or more components, understood। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, that is the binary solution। ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਊਟ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਸੋਲਵੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਨੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ A ਤੇ B ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Then it is understood ਕਿ B represents the solute and A represents the solvent, understood। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਸੋਲਿਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ। ਸੋਲਿਊਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੈਸਿਅਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਸੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਸੋਲਿਊਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਸੋਲਵਡ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸਰ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਲਾਰਜਰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, that is known as the concentration of that solution, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, that represents the concentration of that solution। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੈ ਹਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਐਸਿਡ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ 95% ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ concentration terms।
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ फर्स्ट कंसनट्रेशन टर्म जिहड़ी आउंदी है दैट इज नोन एज द परसेंटेज बाय मास। और इनू होर की कहा जा सकता है, और मास बाय मास परसेंट। ठीक है, इनू रिप्रेजेंट किद्दां करदे आ इस तरीके तो जनरली तुसी इनू भी देख सकते हो, या परसेंटेज बाय मास भी लिख सकते हो, या फिर बाय मास परसेंटेज भी लिख सकते हो। तो दोनों तिन्नां दे विचों कोई भी एक चीज़ लिखी होगी तो उन्हां दा मतलब की होगा बेटा, बिल्कुल सेम मीनिंग होगा। ठीक है, हुण इहदा मतलब की हुंदा है परसेंटेज बाय मास दा। आपां नूं परसेंटेज दा मीनिंग पता है कि परसेंटेज दा मतलब हुंदा है 100। ठीक है, कि 100 दे विचों कितना, तो आपां जिहड़ा परसेंटेज बाय मास है उहनूं किवें एक्सप्लेन करदे आ, mass of the solute over mass of solution multiply by 100. This formula will give you the mass by mass percent. यही आपां नूं mass by mass percent जिहड़ा हैगा उस चीज़ नूं explain करता है। अंडरस्टूड। एक गिवन सॉल्यूशन दे मास दे विच कितना मास जिहड़ा हैगा वो सॉल्यूट दा प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द मास बाय मास परसेंटेज। अंडरस्टूड। सेकंड आ जांदा है बेटा अपने कोले, दैट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इक्को ही गल है। ठीक है, तो हुण इत्थे की आ जाऊगा, इत्थे आपां मास की गल कर रहे सी, इत्थे की आ जाऊगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ आपां की एक्सप्लेन करूगी बेटा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। हुण तुहानूं डायरैक्टली इहदा फार्मूला भी पूछा जा सकता है, तो ये बेस्ड कोई ना कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, जिहदे च तुहानूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे देणगे, सॉल्यूशन दे देणगे, तो तुहानूं उहदी परसेंटेज पूछ लैणगे, या फिर कुछ ना कुछ तुहानूं ये कह देणगे कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना होगा, तो तुसीं दोनों नूं माइनस करके सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ कंसनट्रेशन टर्म्स। इत्थों तुसीं की फाइंड आउट करदे हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की फॉर्म च ते मास बाय मास परसेंट की फॉर्म दे विच कंसनट्रेशन टर्म्स नूं फाइंड आउट करदे हो। अंडरस्टूड। थर्ड टाइप अपने कोले की आउंदी है बेटा, थर्ड टाइप दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट। now what does it mean? mass upon volume percent, that means एक ही हो जाएगा mass of the solute over volume of the solution multiply by 100. got it? ठीक है, तो ये अपने कोले कादा फार्मूला हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट दा। अंडरस्टूड बेटा। सो ये जिहड़ियां तीन अपने कोले कंसनट्रेशन टर्म्स सीगियां, दीज आर द वेरी बेसिक कंसनट्रेशन टर्म्स, जिन्होंने आपां बाय नेम ही जज कर सकते हैं कि इन एक्चुअल इहदा फार्मूला की बनूगा या इन एक्चुअल इहदी डेफिनेशन की बनूगी। ठीक है, दिस इज वेरी क्लीयर फ्रॉम द नेम एज वेल। हुण अपने कोले चौथी एक कंसनट्रेशन टर्म हुंदी है विच इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन नूं आपां पीपीएम नाल रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन की हुंदी है बेटा, अगेन पीपीएम इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट ओवर मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई। हुण इत्थे की है अपने कोले मिलियन। मिलियन का मतलब की हो गया 10 to power 6। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम, बस ये अपने कोले की है रजे कि आप परसेंटेज की थां ते की लिया मिलियन लिया।
अंडरस्टूड। सो ये अपने कोले बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिहड़ा फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिर्फ अपने कोले किहदा फर्क है, मिलियन ते परसेंटेज दा, पार्ट्स पर मिलियन कि पर मिलियन दे विच कितना हिस्सा जिहड़ा हैगा वो सॉल्यूट दा है। अंडरस्टूड, दैट इज नोन एज द पार्ट्स पर मिलियन। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये पेपर दे विच आ सकती है बेटा। सो ये चार जिहड़ियां सीगियां ये अपने कोले बिल्कुल बेसिक कंसनट्रेशन टर्म्स सी। ये थोड़ी जी डिफरेंट आ जाती है क्योंकि इत्थे आपां मिलियन की गल करते हैं, इस करके इहदी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है बाकी तिन्नां नालों, ठीक है। जे तुहानूं किते भी न्यूमेरिकल दे विच आउंदा ते पीपीएम यूज़ किया गया, दैट मीनस उत्थे 10⁻6 नूं यूज़ करना है, ठीक है। मिलियन का मतलब हुंदा 10 लैक्स। नैक्सट आ गया अपने कोले जिहड़ी टेक्निकल टर्म्स हुण आपां स्टार्ट करांगे। द फर्स्ट वन इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द फर्स्ट कंसनट्रेशन टर्म जिन्हों आपां स्टडी करना है बेटा। वो की हुंदी है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट the number of moles of solute present in given volume of solution, या इनू की कह सकती है, the number of moles of solute per liter of the solution is known as the molarity. Molarity is represented as capital M. Very very important concentration term. Molarity जिहड़ी हैगी राजे वो बहुत important concentration term है जिहदे पेपर च आउण दे चांसेस बहुत ज़्यादा ने, ठीक है। तो M जिहड़ा हैगा बेटा that is equals to number of moles divided by moles of solute divided by volume of the solution multiply, अगर ता वॉल्यूम या इनू हजे आप मल्टीप्लाई नहीं करते, पहला थोनों मैं एक कॉन्सैप्ट समझानी है फिर करांगे। तो ये आप जिहड़ी इहदी डेफिनेशन लिखी ओदा मैथमेटिकल फॉर्म आहा बन गया। नाउ molarity will be is equals to number of moles of solute, that means NB, B represents the solute and N represents the number of moles. Volume of the solution इत्थे VS भी लिख सकते हैं ते कल्ला V भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है, या फिर अपने कोले आई भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जदों SOL दे ऊपर N पाया होवे वो सॉल्यूशन नू रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यह लिखण दा तरीका है। हुण अगर तो अपने कोले यह सॉल्यूशन जिहड़ा हैगा वो लीटर्स दे विच है इहदे यूनिट, तो फॉर्मूला अपने कोले सिर्फ इन्ना ही रहूगा मोलैरिटी दा। बट अगर जे अपने कोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिहड़ा वॉल्यूम है वो मिलीलीटर दे विच है, तो इत्थे मल्टीप्लाई किहदे नाल कर दोगे बेटा 1000 नाल, ऊपर होगी मल्टीप्लाई, ध्यान रखियो। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। Again, in the mole concept also, we have done that कि number of moles of solute कादे बराबर होगा। हुण आपां इत्थे मास दी गल कर रहे हैं, मोल दे विच जिहड़ा हैगा वो मास कंसीडर किया जाता है, अमाउंट की गल करांगे तो मास ही आऊगा, ठीक है। तो ये की होगा, गिवन मास यानी कि WB ओवर मोलर मास। अगर थोड़े याद है तो आपां इस तरीके नाल कीता सी, जिन्हों ये नहीं पता बेटा तो यू कैन गो बैक टू आवर मोल कॉन्सैप्ट वीडियो एंड यू कैन चेक ओवर देयर कि नंबर ऑफ मोल्स कादे बराबर हुंदे ने, ठीक है। WB जिहड़ा हैगा दैट इज द गिवन मास, एंड MB इज द मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल दा मास, इनू मॉलिक्यूलर मास भी कह देंगे हैं। सो तुसी NB की जिहड़ी वैल्यू है उहनूं उत्थे पुट कर सकते हो, M इज इक्वल्स टू WB ओवर MB मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ते ऊपर की आ जाऊगा नाल 1000। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। अगर थोनू डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दिते ने तो इत्थे यू नीड नॉट कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स इनटू दिस फॉर्मूला, थोनू ये कन्वर्ट करने की लोड़ ही नहीं है। बट अगर थोनू नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिते हुए, थोनू मास दिता होया तो तुसी आ फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो थोड़े कोले बेटा दो फॉर्मूला आ गए मोलैरिटी नू कैलकुलेट करन दे, एक थोड़े कोले आ फॉर्मूला है ते एक थोड़े कोले आ फॉर्मूला है, अंडरस्टूड।
दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल ने। अगर तो डायरैक्ट नंबर ऑफ मोल्स दिते हैं तो तुसीं इहनूं पुट करो, अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिते तो तुसीं इहनूं पुट करो, या फिर इहदे चों नंबर ऑफ मोल्स नूं फाइंड आउट करो फिर इहदे च पुट करो। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कॉन्सैप्ट ऑफ द मोलैरिटी। नैक्सट कॉन्सैप्ट अपने कोले आ गया बेटा मोलैलिटी। द फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी। मोलैलिटी नूं आपां स्मॉल m नाल रिप्रेजेंट करदे हां ते इह की हुंदी है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per kg of solvent। kg मतलब किलोग्राम। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਟ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਮਾਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦਾ? ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ small m is equals to number of moles of solute over given weight of the solvent। अगर ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ formula will be this only, or mass is equals to NB over WA। मैं इत्थे सीधा डिनोशंस यूज कर रही हूँ, इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि B represents the solute and A represents the solvent। ठीक है, जे ਆਪਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1000 ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਲੈਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ठीक है, मोलैलिटी विल बी इज इक्वल्स टू, जे नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन तो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ NB so this will be the formula to calculate the molality। understood everyone? ठीक है जी, this is how we can calculate the molality। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਤੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਟਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਊਟ ਆਫ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਮੋਲੈਲਿਟੀ which is the better concentration term? this is the very important question। ਤਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ is the better concentration term। ਕਿਉਂ? क्योंकि ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਵੋਲਿਊਮ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਐਕਿਊਰੇਟ ਡਾਟਾ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਰਰ ਜੇ ਘੱਟ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ वेटेज है वो ज़्यादा रहेगी। इस करके मोलैलिटी इज द बेटर कंसंट्रेशन टर्म। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोलैलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, द सिक्स्थ वन इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की चीज़ होंदी है? मोल्स दी फ्रैक्शन। जे आपां फ्रैक्शन की गल करिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन, ਤਾਂ फ्रैक्शन का मतलब ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਸ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਮੋਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਲਟਡ x ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, CHI। ਠੀਕ ਹੈ, इट इज नोन एज द काई। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਈ B ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਈ A ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਈ B ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਸਮ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਾਈ A ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਾਈ A ਹੋਊਗਾ given number of moles of A over total number of moles, which is given by Na plus Nb। so these two formula represents the mole fraction of the solute and solvent। understood? ठीक है जी, जिद्दां हुण अपने कोले मोलैरिटी सी या मोलैलिटी सी बेटा, मोलैरिटी आपां की लिखिया सी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute over volume। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ यूनिट की बन जाणगे? मोल्स पर लीटर या पर मिलीलीटर। ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ?
WA ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੋਲਸ ਪਰ kg। ठीक है, तो इन्हां दे कुछ ना कुछ यूनिट ने जिहड़े कि आपां इहदे तो लिख सकते हैं। बट जिहड़ी मोल फ्रैक्शन है बेटा उहदे उपर भी मोल है ते नीचे भी मोल है, तो जिहड़ी फ्रैक्शन दी रेशो सेम हुंदी है दैट इज द यूनिटलैस क्वांटिटी। सो मोल फ्रैक्शन इज द यूनिटलैस क्वांटिटी। तुहानूं पेपर दे विच पुछा जा सकदा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसनट्रेशन टर्म इज यूनिटलैस। ठीक है, तो तुहानूं चार ऑप्शंस दे देणगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो उन्हां दे विचों आंसर की होगा मोल फ्रैक्शन। गॉट इट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन दे कोई यूनिट नहीं हुंदे। नैक्सट आ गया बेटा जी अगला अपने कोले लास्ट कंसनट्रेशन टर्म है जिहड़ी दैट इज द नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी इज बिट टिपिकल टर्म, इस करके इहनूं लास्ट दे पढ़ा रही है मैं। नॉर्मैलिटी की चीज़ हुंदी है द नंबर, हुण तक आपां सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स नाल डील कीता है, बट इत्थे आपां किहदे नाल डील करांगे ग्राम इक्विवेलेंट्स नाल। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स present in given solution is called normality। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ normality। ठीक है, किन्ने ग्राम इक्विवेलेंट्स सोल्यूट दे लिख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। आप सोल्यूट की ही गल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही डिसोल्व किया जाता है, तो जो नहीं भी लिखोगे तो इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड। ठीक है, नैक्सट आ गया हुण अपना मतलब की है समझण दा ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अपना जिहड़ा मेन कंसर्न है वो यह है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स की होंगे। पहला आप इसदा फॉर्मूला बनाने हैं। नॉर्मैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन अगर यह ml दे विच है तो तुसी इहनूं मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर 1000। क्लीयर है जी। ठीक है, तो हुण आपां बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का कॉन्सैप्ट समझना है कि एक्चुअल दे विच ग्राम इक्विवेलेंट्स की हुंदे आ। तो हुण आपां इत्थे लिखांगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। जितना अपने कोले नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े हुंदे है वो गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास हुंदा है, सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिहड़े हैगे ने वो कादे बराबर होणगे गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। ठीक है, जिद्दां अपने कोले नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े हैगे है वो गिवन मास ओवर मोलर मास हुंदा है, जिहड़ा कि आपां पहली मोलैरिटी दे केस च लिखिया सी। सिमिलरली जदों आपां ग्राम इक्विवेलेंट की गल करते हैं बेटा तो ग्राम इक्विवेलेंट विल बी गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। हुण आपां नूं इक्विवेलेंट मास नहीं पता कि की हुंदा है, सो इक्विवेलेंट मास नूं पहलां समझदे हां। इक्विवेलेंट मास की हुंदा है? Equivalent mass is the molecular mass over n factor. Now, what is the meaning of this n factor? Molecular mass तो आप किसी भी molecule के formula तो find out कर सकते हैं, but आ n factor की चीज़ है। n factor की हुंदा बेटा? n factor अपने कोले चार चीज़ां हो सकती हैं। अगर अपने कोले दिता होया मॉलिक्यूल एसिड है, ठीक है, तो उहदी की होगी बेसिसिटी। एन फैक्टर बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक, अगर अपने कोले दिता होया जिहड़ा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो एक बेस है तो उहदी की होगी एसिडिटी। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड की हुंदा है कि कोई भी एसिड किन्ने हाइड्रोजन आयन दे सकदा है, H पॉजिटिव आयन किन्ने लूज कर सकता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड दे विचों, दैट इज नोन एज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एसिडिटी ऑफ एन बेस की हुंदी है किन्ने OH नेगेटिव आयन्स अपने को वो रिलीज कर सकता है, दैट इज नोन एज द एसिडिटी ऑफ अ बेस।
थर्ड की है बेटा अपने कोले, अगर कोई भी एटम है तो ओदी की होगी वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एन एटम। अगर जी अपने कोले जिहड़ा एन फैक्टर है वो कोई इलैक्ट्रोलाइट दिता होया है, ठीक है, इलैक्ट्रोलाइट दे हमेशा की हुंदा है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स लूज और गेन, ठीक है, द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स लूज और गेन, लॉस्ट और गेन इन ऑफ, नॉट इन, इलैक्ट्रोलाइट। अंडरस्टूड। तो जिहड़ा ये एन फैक्टर है बेटा ये चार ही चीज़ां हो सकदियां ने, या जे तो दिता होया मॉलिक्यूल एसिड है तो ओदी बेसिसिटी होगी, जे दिता होया मॉलिक्यूल बेस है तो ओदी एसिडिटी होगी, दिता होया जिहड़ा स्पीशी है वो एटम है तो ओदी वैलेंसी लवांगे, ते जे दित्ती हुई स्पीशी अपने कोले इलैक्ट्रोलाइट है तो उन्हें कितने इलैक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं वो एन फैक्टर नूं रिप्रजेंट करूगा, ठीक है जी। तो एन फैक्टर आपां इन्हां चीज़ां नूं देख के डिसाइड कर सकते हैं। हुण मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास पहला फाइंड आउट करते हैं, एक हाइड्रोजन का एक हुंदा तो दो का कितना आ गया 2, सल्फर का कितना हुंदा बेटा 32 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना हुंदा 16 ते 2 4 का कितना हो जाऊगा 64, तो आंसर कितना आ गया अपने कोले 98। सल्फ्यूरिक एसिड का जिहड़ा मोलर मास हुंदा दैट विल बी 98 ग्राम्स, ठीक है। हुण तुसी ये देखना है भी ਇਹਦਾ इक्विवेलेंट मास कितना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड जिहड़ा है वो एक एसिड है, इस एसिड की की होगी बेसिसिटी, ते इहने जदों बेसिसिटी जदों आपदी शो करनी है तो किन्ने H पॉजिटिव आयन दिंदा 2, सल्फ्यूरिक एसिड की जिहड़ी बेसिसिटी है वो कितनी है 2 है, दैट मीनस अगर तुसी ਇਹਦਾ इक्विवेलेंट मास कढना है तो कितना आ जाऊगा एन फैक्टर कितना हो गया 2, मॉलिक्यूलर मास ओवर एन फैक्टर, क्योंकि एन फैक्टर इत्थे बेसिसिटी आऊगी तो आंसर विल बी 49 ग्राम्स। सो दिस विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर तुहाडे कोले कोई भी आपां कह सकते हैं कोई एक इलैक्ट्रोलाइट ले लो, कोई इलैक्ट्रोलाइट लो तुसी किहड़ा लाओगे, मान लो जिंक सल्फेट है, ठीक है, ना तो हुणे एसिड है ना बेस है ना एटम है, तो यह एक इलैक्ट्रोलाइट है सॉल्ट है, ठीक है, इहनूं जदों तुसी तोड़ोगे तो इट विल ब्रेक लाइक दिस Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इस तरीके नाल टुटूगा, ठीक है। जदों इस तरीके नाल टुट गया तो इत्थे कितने इलैक्ट्रॉन्स लूज होए या गेन होए 2 इलैक्ट्रॉन्स, दैट मीनस एन फैक्टर कितना आ गया 2। तो ਇਹਦਾ भी आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਕੇ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਮਾਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अंडरस्टूड बेटा। सो दिस इज हाउ you can calculate the equivalent mass of any molecule, any compound, any atom, element ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ equivalent mass ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, then we can calculate the number of gram equivalents। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी। तो ये अपने कोले बेसिक कंसनट्रेशन टर्म्स सी बेटा जिन्हों के बेस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मैलिटी ते मोलैरिटी दे विच भी रिलेशन पूछा जाता है, तो तुसी इस एन फैक्टर नू मल्टीप्लाई करो मोलैरिटी दे नाल, यू विल गेट द नॉर्मैलिटी। इनू Z इंटू M लिख देंगे, दिस Z रिप्रजेंट्स द एन फैक्टर। अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगले लैक्चर दे विच आपां एक नवे टॉपिक दे नाल मिलांगे। टिल देन प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस एंड डू वेल। थैंक यू।